स्वागत लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश एवं राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे। I find it shocking that after 9 days of the terrible deaths of patients at the SCB Medical College and Hospital, that even one union minister has not visited the hospital at Cuttack. This is truly shocking. During the tragedy that took place at the private medical college, during our government, our state government, several union ministers visited the hospital. You can compare for yourself their concern for the people of Odisha who died in such a atrocious accident. I repeat again that the state minister, the Odisha Minister of Health, should resign immediately. I repeat this again. Sir, there is an anguish among opposition party leaders after the election commission letter circulated with BJP stamp on it. So, as an opposition party leader, how do you see this in Kerala? I'm talking about Kerala. I can't follow what you're saying. What is the point you're making? Election commission circular was issued with a BJP seal on it. Yes. So after the opposition raised the issue and made a hue and cry, the election commission clarified that it was a clerical error. So how do you see this as an opposition? It has a stand of Bharatiya Janata Party. Unfortunately. You have just informed me of this. If it is correct, it is most unfortunate. Sir, how long Thank the you. BJP will continue to agitate on the SCB issue in Assembly? You can see for yourselves the amount of terrible deaths, these tragedies that have taken place at the SCB Medical College and Hospital. Certainly, the BJD will continue its agitation. Thank you, sir. କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଥମରୁ ନେବା କଥା ସରକାର ବିଳମ୍ବ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ କଥା, ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି କେଉଁ ମୁହଁରେ କହୁଛି? ବିଜେଡି ଯେଉଁ ତାର 24 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ କ'ଣ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି? ଇଭେନ୍ କି ତିନିଟା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲା ପରେ ବି ସେ ତ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନାହିଁ, କାହିଁ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ? ତାହେଲେ ନୈତିକତାର କଥା କ'ଣ କହ? ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଗୋଟେ ଘଟଣାଟେ ଘଟିଲା, ଏଇଟା ଗୁରୁତର ଘଟଣା, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ ନା, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରିକି ତାଙ୍କର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା। ଏଇଟା ହିଁ କଥା। ତାଙ୍କର ହାଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ତ ଅଛି, ତାଙ୍କର ହାଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ସେଟା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଅଜଣା ଅଛି କି? ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଅତି ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ କ'ଣ ଅଛି? ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ତ ସେଇ ପାଇଁ ଏସବୁ ନାଟକ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କି ଜାଣେ, ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିମାଣ୍ଡ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି। ଡିମାଣ୍ଡ ଡିସ୍କସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର ପକ୍ଷ ଏବଂ ବିପକ୍ଷରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କଥାଟା ଯଦି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଅନ୍ତା, ସେମାନେ ସମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ହୁଅନ୍ତେ। ମୁଁ ସେଇଆ କହିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ସାଇଟ୍ରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ସାଇଟ୍ରେ ତୁମେ ବି ଲୋକଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ମାନେ ଠିକ୍ ଲାଗନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତମ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମେ ନିର୍ବାହ କରୁନାହ। ଏଡ଼େ କିଏ ଦେଲା? ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛୁ ନା। ମେଡିକାଲ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆମେ କୋଉଠି ଏଡ଼େଇ ଦେଉଛୁ? ଆମେ ଏଡ଼େଇ ଦେଉଛୁ। ତ ଆଲୋଚନା ହଉ ନା ବିଧାନସଭାରେ, ମେଡିକାଲରେ କାହାର ଦାୟୀ, କିଏ ଦାୟୀ, କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହଉ। କିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅବହେଳା ଅଛି
ତାଙ୍କର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା କଥା ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ମୋର ନାହିଁ। କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଥମରୁ ନେବା କଥା ସରକାର ବିଳମ୍ବ କରିଛନ୍ତି। सरकार संपूर्ण रूपे दोषी की अपराधी की घंट घोड़ाउछंती। सरकार जिदखोर मानसिकतार अछंती। जेहेतु सुपरिटेडेंट ऊपर हाथ अच्छी ऊपर संपर्क अच्छी स्वास्थ्य मंत्री हाथ टेकी दउछंती। मुख्यमंत्री कौन निष्पत्ति नौ नांती। तेणु सरकार वर्तमान कुंभकर्ण निद्रा शोची। वर्तमान अवस्था होची ओडिशार स्वास्थ्य विभाग राम नाम सत्य हरिनाम सत्य। विरोधी दल जेते दाबी कले मध्य कौन दाबी की कर्णपात करूना सरकार। सरकार कुंभकर्ण निद्रा शोचती जो आम दाबी करुचु आम स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दाबी करुचु एवं सुपरिटेडेंट जी से कार्यानुष्ठान दाबी करुचु। वर्तमान सरकार गोटे आई वाश करने सुपरिटेडेंट को बदली कर किंतु से एससीबी अवस्थापित कर तेणु सी जो एससीबी जो सुपरिटेडेंट को से नियुक्ति करते बेनियम था 60 जन अति सीनियर लोक ओभरटेक कर अपॉइंटमेंट करा तापर जितेबाला ये कथा प्रतिवाद है से पुणी से अवस्थापित कर तेणु ये हूँ दुखर कारण। तेणु सरकार चेई शोब जी उठेब किए सरकार जो निजे सुरक्षा दौरान सुपरिटेडेंट को तेणु सीटी विरोधी दल जिते दाबी कले भी शुणुना सरकार जिदखोर मानसिकतार अच्छा तेणु बाध्य आम विधानसभा भितर गणतांत्रिक उपाय आमर दाबी को उपस्थापित करुचु। किंतु सरकारी दल सदस्य सीधासलख कहते गृह चलाई दौना अनेक साधारण लोक स्वार्थ रोचे गृह चलैले अनेक प्रश्न उत्तर गृह चलाउनी किए गृह चलाउनी सरकार दल सरकार चाहूना विरोधी दल को विश्वास को नौना विरोधी दल को आलोचना करूना कि कार्यानुष्ठान नौना कार्यानुष्ठान नहीं नहीं तलिया कर्मचारी केते जन कार्यानुष्ठान नहीं सुपरिटेडेंट सीट बदली कर कौन कार्यानुष्ठान से कौन जापना जितेबाला नवीन बाबू को शासन थिला सेतेबाला गोटे प्राइवेट हॉस्पिटल डाक्तरखाना निया नागितला सेतेबाला पूरा नैतिकता दृष्टिकोण नवीन बाबू स्वास्थ्य मंत्री की कहते इस्तीफा देवाकू एवं से कर्तृपक्ष कार्यानुष्ठान होता। बर्तमान कौन हो बर्तमान कौन मुख्यमंत्री ना बर्तमान स्वास्थ्य मंत्री ना आपड़ कहते पूरा लोक मुख्यमंत्री आपड़ कहते लोक सरकार 13 जन लोक मले लोक सरकार कौन भूमिका निभेला कौन काम कला कौन 13 जन को आश्वासन देला ये प्रश्न आज ओडिशावासी बर्तमान ओडिशावासी कंपेयर करुचंती। 17 तारीख ठारू आज पर्यंत गृह स्वाभाविक अवस्था को आसी पारला नहीं कारण सरकार निजर विफलता को घंट घोड़ेवा को जाई इच्छा थिले मध्य से ताको बाहर प्रकाश करि पारुना से जानि पारुचंती लोक माने ताको विरोध करूचंती लोक माने हसुचंती लोक माने दुख मध्य प्रकाश करूचंती सरकार कार्यक्रम रे किंतु सरकार ताको एपर्यंत ग्रहण करने को प्रस्तुत नुहंती काले तांकर कला कारनामा पर्दाफासी। तो यही दृष्टि जो रोगी माने निजर जीवन बचाई डाक्तरखाना को भरसा कर विशेषकर ओडिशार गोटे नंबर 1 डाक्तरखाना जोटा कि कटक बड़ मेडिकल बोली कहले केवल ओडिशा नुहे बेंगल बिहार झारखंड रु लोक मैंने आसते चिकित्सा सेवा पाइबापी जदि से चिकित्सा हाँपाई आसी तांकर मर शरीर को ज्ञाति कुटुंब मैंने नहीं जी केते बड़ दुखद कथा और केते बड़ संवेदनशील कथा किंतु सरकार एप्रति कौन जत्नवान होना तांकर अनुशोचना मध्य नहीं से प्रतिवाद रे आज गृह को अचल करागला एवं सरकार को बारंबार बारंबार दाबी सत्वे कौन पदक्षेप नेले से गृहर विवृत्ति रखंतु। अग्निकांड घटिले फायर अफसर आवश्यकता अच्छी किंतु अग्निकांड घटे बोली कौन सरकार जानते अग्नि कर्मचारी मानक सस्पेंड करदे जो मैंने गुरु दायित्व निभेवा कथा से कौन गले बड़ पंडा मान कौटी अच्छा तेणु एपर्यंत घंट घोड़ाइबार सरकार सफल होती लोक मान न्याय देवाई विफल होती। देखु राजनैतिकरण आम कर से लोक कहते आपड़ 17टा मेडिकल कॉलेज करदे हेनी मेडिकल कॉलेज करेंगे भित्तिभूमि थी कंट्राक्टर चलीजे किंतु सेठी रोगी मानकर सेवा विपर्यस्त थी कारण डाक्तर थे कर्मचारी थे इक्विपमेंट्स थी तेणु विभिन्न कथा समस्या रही आप तौल को जातु देखिए जोड़ा सीएचसी अच्छी पीएचसी अच्छी से डाक्तर गोटे भी ना केवल कंपाउंडर स्वीपर चपरासी यही मैंने होती आमर स्वास्थ्य व्यवस्थार भरोसा तेणु मान्यवर विधायक मैंने जो मैंने कहते से अनुभव करूँ से राजनीतिकरण बोली कहले हेनी ओडिशा लोकंर जीवन जीविकार कथा तेणु से स्वास्थ्य सेवा जो वंचित होती विरोधी जो स्वर उठे ये गणतंत्र स्वर एटा विरोधी स्वर नुहे तेणु ता प्रति विचार विमर्श करी कौन पदक्षेप नेले गृह विवृत्ति रखंतु एवं गृह को सुचारू रूपे चलाइबा व्यवस्था सृष्टि कर।
ସରକାରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଧାନ କଥାଟି ଯୋଉଟା ଆମେ ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟା ଆପଣ ତାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଆପଣମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରହି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଖବରକୁ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ମହୋତ୍ସବରେ ଘଟିଛି ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଖାଲି ମହୋତ୍ସବ ପରେ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି ନା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବସି ନିଜର ପାତିଆରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠି ଯାଇ ଲୋକମାନେ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଉଠି ଯାଇକି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ ପୁଲିସ ଲଗେଇ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱର କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆଉ 2 ଦିନ ଆଜି ବୋଧେ କି କାଲି ଆପଣଙ୍କର ଧାନର ଟୋକନ ଦେବାର ଅବଧି ସରିଯିବ ଧାନ କିଣାର ସମୟ ଶେଷ ହେଇଯିବ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଟୋକନ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ସରକାର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ମୁହଁରେ ମିଛ କଥା କରେଇଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ କିଣିବୁ ହେଇଛି କି ନାଇଁ ଆମେ ଗୃହ ଚଲେଇବାକୁ ଆସିଛୁ ଗୃହ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆସିନୁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯଦି ତାଙ୍କ କଥାରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବେ ତ ସେଠି ଗୃହ କେମିତି ଚାଲିବ ସରକାର ଆଗେ ଆସନ୍ତୁ ଗୃହ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଗୃହ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିବ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମୁଦା ନେଇ ଆସିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ମୁଦାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ମୁଦା ଆମେ ଉତ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ତା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ବି ବହୁତ କାଫି ଅଛି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ବି ବହୁତ କାଫି ଅଛି ସରକାର ଆଗେ ନିଜେ ମାନସିକତାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ଗୃହକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଧାନସଭାକୁ ଅଚଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଫଳବତୀ ହେବେ ନାହିଁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ବୟକଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ନେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଘଟଣା ଦିନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରାତି 4:10 ପହଞ୍ଚିକି ମୃତାହତ ପରିବାରକୁ ଭେଟିକି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୃତାହତ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା ତାକୁ ଗୋଟେ କମିଟି କରାଗଲା ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ଧରିକି ଶାସନ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଦଳ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ କଲେଜର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତେ ଡିଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତେ ବା ଲାବୋରେଟୋରୀ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ 850 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା କାମ ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଏଭଳି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିବ ନାହିଁ ଅଘଟିବା ପାଇଁ ସରକାର ପୁରା ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଦାବି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ଅଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଏ ନିରର୍ଥକ ଇଏ ଆଦୌ ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ହିତରେ ଏ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ମୁଁ ସେ କଥା କହିଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରର୍ଥକ ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ଘଟଣା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯାଇଛି ମୃତାହତ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମବେଦନା ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ମେଡିକାଲ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ସେ କଥା ସେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଆଉ ଡ୍ରାଇଭରର ଚତୁରତା ଯୋଗୁଁ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଆଉ ଗଡ଼ିଲା ନାହିଁ ପଛ ଚକା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ପଛ ଚକାରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ନ ଗଡ଼ିବାରୁ ସେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଲା ତାପରେ ପଛ ଚକା କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆଁଟା ଜଳି ଯାଇଥିଲା
संपूर्ण निया जली जाइतिला। तो सेठी 40 जन यात्री थिले। भाग्यवशत ड्राइवर चतुरता जो समस्त को उठाई उठाइला तापरे मु मध्य शोइतिली स्लीपर सिंगल स्लीपर रे मते मध्य उठाइला मु संगे संगे तरबर प्राण विकल उठली ट्रेन डेई पड़ली सेठू। तापर मो बैग पत्र धरिक तलू गली देखिली जे आउ भितरे माने महिला माने अछंती छोट छोट शिशु माने अछंती से माने काउली बाउली हेकरी कांदुचंती। मु निजे मो बैग पत्र गोटे सुरक्षित जगह रखी मु निजे से भितरे बस भितरे पशिली एवं बहुत लोक टाणी ओटारी से बही आनिक पूरा से सुरक्षित जगह आनिली। ए प्रकार घटना घटी जाइतिला। एटा गोटे महाघटना दुर्घटना एभली भाव में बारंबार मु घटुची। छुट्टी थिला शनिवार रविवार 2 दिन छुट्टी थिला जेहेतु मु गोटे दिन कहीं गाड़ी गोटे थर भाई मोर चित्रकोंडारू जदि मु भुवनेश्वर को आसबि 30,000 टंका खर्च होची थरे जदि आसबि माने मो गाड़ी धरिक आसुची माने थरे आइबा को 30,000 टंका खर्च होची। एते टंका हमर आइसबो कोठी। मु बेले बेले प्राय समय मु बस रे मते जीवा आसबा करे। मो पीएस थिबे आमे तेबु 2-4 जन मो बस रे मते जाउछु। आउ भाई आमे एते बड़ लोक नाइ जे आमे सब बेले गाड़ी धरिबु थरकु 30-40 हजार खर्च करबु। एति पई ए खर्चांत बहुत खर्चांत से दृष्टि रु आमे मु बस रे मते जीवा आसबा। तो देखंतु एटा भगवान प्रभु जगन्नाथ मु कोटि कोटि प्रणाम करूची। गोटे 3टा राति समय संपूर्ण यात्री माने संपूर्ण सोई पड़ते से समय जो भली माने घटना होइतिला समस्त को जते बेले मु उठिली मु बंचिबा सहित लोक को बंचाइबा मोर गोटे कर्तव्य थिला। मु समस्त को निजे बही कि तले नहीं सुरक्षित जगह रखी तांकर जिनस पत्र। तापर 1.5 घंटा काल सेठी गोटे अंधकार किटिकिटी अंधकार जो रामभद्रमपुर गोटे जंगल भितर जो घटना घटिला। आज का दिन जो है 24 मार्च 1990 इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF लौटा था। और जिस दिन लौटा मतलब लौटा नहीं भगाया गया, हमारी हार हुई। और उसको लौटाने में जो अधिकारी वहाँ मौजूद थे उस वक्त यहाँ अभी जो वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री हैं माननीय जयशंकर जी भी थे। इसके पहले जो प्रेमदासा वहाँ के राष्ट्रपति थे श्रीलंका के, उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को राजीव गांधी जी को 1989 में बड़ी हार्ड हिटिंग चिट्ठी लिखी थी जिसको हमने जिक्र किया है कि आप जो है घटियापंथी कर रहे हैं, आपके सैनिक जो है बदमाशी कर रहे हैं और यहाँ जो है आप पीस नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ लड़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा जब आप रिसर्च करते हैं तो कई एक चीज़ें पता चलती हैं। मैं आपको बताऊं, आज ही के दिन 24 मार्च 1971 को भारतीय सेना कोलंबो भेजी गई थी। तत्कालीन जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी भंडार नायके, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी इंदिरा गांधी जी को। और वहाँ जो है इसी तरह का जिस तरह हमारे यहाँ 74-75 में छात्रों का आंदोलन हुआ, वो आंदोलन उस वक्त वहाँ भड़का था। और आप समझें कि दूसरे के काम में हस्तक्षेप करते हुए भारतीय सेना गई थी वहाँ 1971 में। और जब 1971 में हमारा वार हुआ पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश जब स्वतंत्र हुआ, तो बांग्लादेश के सैनिकों को सेफ पैसेज 71 के वार में श्रीलंका ने दिया। ये कैसी डिप्लोमेसी थी? आप अपने तमिल भाइयों को मारने के लिए सेना को भेजते हो। 1987 से लेकर 1990 तक हमारे सारे तमिल नागरिकों को जो है वो मारते रहे, तमिलियंस को, इंडियंस को मारते रहे, या श्रीलंका में जो भारतीय मूल के लोग थे उनको मारते रहे। और 71 में वहाँ इंटरनल यदि छात्र आंदोलन हो रहा है, आप क्या चीन हो भैया, डिक्टेटर हो? ये जो मानसिकता है नेहरू गांधी परिवार का, उसी के ऊपर आज मैंने ट्वीट किया। आज का दिन जो है 24 मार्च 1990 इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF लौटा। पार्टी से मीटिंग भी हुआ है इस विषय को लेकर, कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं? यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच पर आप गौर करिएगा। शौचालय से शुरुआत हुई थी, पूरा देश अचंभित और शॉक्ड हो गया था कि शौचालय पॉसिबल कैसे। ये शुरुआत वहां से भी, उनकी सोच महिला के प्रति, नारी के प्रति, देवी शक्ति के प्रति कितनी सेंसिटिव है वो बताता है। और उसका परिणाम आज ये हुआ कि 33% ऑफ रिजर्वेशन, मतलब देश की सबसे बड़ी पंचायत में, ऐतिहासिक, अद्भुत इसको कहेंगे। 70% ऑफ पॉपुलेशन महिला है इस देश में, 140 करोड़ में 70 करोड़ महिला। कितना बल मिलेगा। और सबसे बड़ी वोटर
भाजपा की, नरेंद्र मोदी जी की महिला वर्ग 100% है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। सो ये एक बहुत बड़ी सौगात और बहुत स्वागत है। इसीलिए मोदी जी विश्व के सबसे चहीते नेता हैं। ये ऐतिहासिक कदम और स्वागत है, और सभी अपोजिशन को भी मानना पड़ेगा भाई, उनकी भी पार्टी में महिलाएं आएंगी और सब लोग इसमें, तो सबकी सहमति एक साथ सबको वोट करना चाहिए सरकार के इस निर्णय के पक्ष में। सर, आप उत्तर प्रदेश से चुनकर आते हैं और जिस तरीके से ला रही है और 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू भी हो जाएगा, क्या कहेंगे? इसका स्वागत है और बहुत दिनों से महिला रिजर्वेशन बिल का इंतजार था। नारी वंदन अधिनियम तो यही, जब नए बिल्डिंग में हम लोग गृह प्रवेश किए थे इस पार्लियामेंट भवन में, उसी समय अनाउंस हो गया था कि महिला रिजर्वेशन होगा, लेकिन इतने दिनों की प्रतीक्षा चलती रही, लेकिन फाइनली अगर ये निर्णय लिया गया है तो हम इसका स्वागत करते हैं और महिलाएं तैयार हो रही हैं, आएंगी लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, और मुझे लगता है आने वाले समय में अभी हम लोगों की बातचीत नहीं हुई है, कुछ शर्तों के साथ इसे सपोर्ट किया जाएगा। तो आज हम लोग उस पर निर्णय लेंगे कि हमें क्या क्या मांग रखनी है इस बिल में। जो भी इनका ड्राफ्ट हमने देखा नहीं है कि क्या क्या वो उसमें प्रावधान रख रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जो पार्टियां हैं वो आपस में मिल बैठ के, आज हमारी मीटिंग भी थी इसको लेकर, उसमें हम लोग ये तय करेंगे कि हमें इसमें क्या क्या ऐड करना है या क्या क्या माइनस करना है, ताकि ये बिल सबके लिए सुविधाजनक हो और सबको इसका लाभ मिले। थैंक यू। सगळ्यात जास्त कांद्याचं उत्पादन नगर बरोबर होतं आणि आज जी, ये बहुत बढ़िया एकदम उम्दा स्टेप है, क्योंकि बहुत ही सालों से जो है महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था। अगर ऐसी अच्छी चीज होना चाहिए तो एक बड़े नेता जो हमारे नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता जो है हमारे प्रधानमंत्री है, सिर्फ इन्हीं से ऐसा होता है। तो अभी ये रिप्रेजेंटेशन बढ़ने से, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन क्या है, असेंबलीज में हो या पार्लियामेंट में हो, रिप्रेजेंटेशन बढ़ने से क्या है, बड़े बड़े मुद्दे जो है, जो सेंसिटिव इश्यूज है, जो महिलाओं के हो सकते हैं, बच्चों के हो सकते हैं, बच्चों का भविष्य के बारे में हो सकता है, परिवार के बारे में हो सकता है, बचत के बारे में हो सकता है, ये अच्छे विचार लेके आते हैं, डिस्कस करते हैं, रिसर्च करके आते हैं और जो है डिमांड करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का जो बढ़ने वाला है, इससे जो है हमको देश के लिए बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है, देश के लिए बहुत अच्छा विकास होगा। सर, खास तौर से चूंकि दक्षिण भारत में देखा जाए, साउथ इंडिया में वहाँ पर वुमेन रिप्रेजेंटेशन जो है उस पर बहुत फोकस किया जाता है, तो वहाँ जो साउथ इंडिया में जो महिलाएं हैं उनको कितना फायदा होगा इसमें? बहुत फायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे साउथ इंडियन वुमेन भी जो है पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही पॉलिटिकली इन्फॉर्म्ड है, पॉलिटिकली नॉलेजेबल है और पॉलिटिकल वॉइस भी देते हैं और डिमांड भी करते हैं अच्छी तरह। तो इससे जो है न सिर्फ साउथ इंडिया बल्कि पूरा देश में जो है इसका असर पड़ेगा, अच्छा असर पड़ेगा। थैंक यू सर। सगळ्यात जास्त कांद्याचं उत्पादन नगर बरोबर होतं आणि आज जी, ये बहुत बढ़िया एकदम उम्दा स्टेप है, क्योंकि बहुत ही सालों से जो है महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था। कैसे देखते हैं इसको, कितना महत्व? देखो, सरकार ने जो धोरण इम्प्लीमेंट करने का सोचा है, उन्होंने जो डिक्लेयर किया है कि महिलाओं को एक प्राधान्य देने का, वो सरकार निभा रही है और अपोजिशन ने उसको साथ देना चाहिए। दूसरी तरफ जिस तरीके से जयराम रमेश का एक बयान आया है कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, पीएम क्या कर रहा है इस तरीके की, जबकि अमेरिका की तरफ से इस बात को पूरी तरीके से देखा, अपोजिशन कुछ भी बातें कर रहे हैं और उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो पीएम साहब ने जो भूमिका ली है वो देश के हित के बारे में है, उन्होंने नहीं बताना चाहिए, उन्होंने सजेशन नहीं देना चाहिए, उन्होंने पीएम के साथ रहना चाहिए, पीएम की भूमिका के साथ रहना चाहिए। राहुल गांधी दूसरी तरफ कह रहे कि पीएम कॉम्प्रोमाइज है, पार्लियामेंट में कुछ बोलते नहीं है, 25 मिनट का स्पीच दिया, कुछ भी ऐसा नहीं था। राहुल गांधी खुद एलओपी है, वह सभागृह में बैठने को उनको बोलो और देश के बारे में, देश के जो बुराई करते हैं
वो बुराई करना कम करो। तुम देशवासी है, हिंदुस्तानी है पहले, ये भूल मत जाओ। अब पाकिस्तान की भूमिका जो निभा रहे हैं वो गलत है। मीटिंग हुई है, कैसे देख तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं सभी से उनकी सहमति उसको लेकर मीटिंग भी चल रही है, कैसे देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। भारतीय जनता पार्टी की भी कमिटमेंट है, प्रधानमंत्री जी कमिटमेंट है, हम सत्ता में हैं। 33% आरक्षण का बिल आएगा, पास होगा और महिलाओं को सुनिश्चित भागीदारी प्रदान की जाएगी। सर, एक सवाल, प्रधानमंत्री ने कल वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जो वक्तव्य रखे लोकसभा में, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से कटाक्ष किया गया गुजरात में जाके कि 25 मिनट की स्पीच में उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा और पार्लियामेंट में तो आते ही नहीं है, कॉम्प्रोमाइज पीएम है, लगातार इस तरीके के सवाल उठाना पब्लिक मंच से कैसे देखते? देखिए, राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में आते हैं तो कहते हैं मुझे बोलने नहीं दिया जाता। जब बोलने दिया जाता है, जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, साउथ की बात हो तो वो ईस्ट की बात करते हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी जी का देश के प्रति अपोजिशन लीडर के नाते उनका कोई दायित्व नहीं है। ऐसी क्राइसिस जब उत्पन्न नजर आ रहे हों, अगर मान लो कि युद्ध विश्व में कहीं हो रहा है और प्रधानमंत्री कोई बात कह रहे हैं, तो विपक्ष की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि सरकार का साथ देना तो दूर, कभी अगर हिंदुस्तान में होते हैं तो पार्लियामेंट के बाहर बोलते हैं और विदेश में होते हैं तो वहां जाकर भारत की छिछरादिर करते हैं। राहुल गांधी से यही अपेक्षा है जो वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की कमिटमेंट है, उन्होंने जो लोकसभा में कहा है, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को लोकसभा के माध्यम से उन्होंने संबोधित करते हुए बता दिया कि किस स्थिति में है, हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जिस तरह की डिबेट करना चाहते हैं राहुल गांधी जी, देश में कोई नहीं कर सकता। तभी उनके बारे में जो तरह तरह से चर्चाएं होती हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिनके नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है और बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना अगर आवश्यकता होती है तो करता है, चाहे हमारा कोविड का काल हो, उस समय भी पूरे देश के सहयोग के साथ में जैसे हम उन स्थितियों से उभरे हैं। और हम कह सकते हैं जहाँ पर ऊर्जा का संकट पूरी दुनिया में युद्ध के कारण से है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे जिस तरह से विदेश नीति कूटनीति है, आज हमारे भारत के नागरिक चाहे वो किसी प्रकार की ना गैस की किल्लत है, ना डीजल की किल्लत है, ना पेट्रोल की किल्लत है, और निश्चित हम कह सकते हैं कि किसी भी तरह से उन पर किसी कीमतों का भार भी नहीं पड़ने दिया है जनता पर। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस प्रकार का निर्णय लेते हैं जो देश की जनता के हित में होता है। सर, AIMIM के नेता हैं उत्तर प्रदेश में, हाजी शौकत अली, उनका कहना है कि हमको 111 MLA नहीं, सिर्फ 11 MLA दे दीजिए तो हम आपको बता देंगे जो मुसलमानों को मारेगा हम उसका एनकाउंटर कर देंगे। वो इस तरह की धमकी दे रहे हैं। देखिए, इस तरह से कट्टरवादी शब्द बोलने से कोई, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जगह नहीं है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से डबल इंजन की सरकार काम करती है और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका इस देश में के विकास में सभी का सामूहिक प्रयास, माने प्रधानमंत्री केवल कहते नहीं है, करते हैं। तो ये केवल लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह के बयान देना, लेकिन मुझे लगता है कि कानून सबके लिए बराबर है और कानून से जो खिलवाड़ करेगा तो कानून अपना उसके साथ काम करेगा। मुझे लगता है कि जिस तरह की डिबेट करना चाहते हैं राहुल गांधी जी, देश में कोई नहीं कर सकता। तभी उनके बारे में जो तरह तरह से चर्चाएं होती हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिनके नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है और बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना अगर आवश्यकता होती है तो करता है, चाहे हमारा कोविड। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में। समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।